Hi friends, good evening to all of you. This is Sachin Sukla. Welcome back to our YouTube channel Team Super Cluster. Today I am going to take the sessions of 10th class. In my previous lecture I have taken the theory classes. In theory classes I was teaching the electricity, and in electricity you will see that I have taken a 3 and 4 lectures. So I am going to continue after that. So I was there in the resistance and resistivity. So I have to tell you that what is the difference between the resistance and resistivity. Resistance is simply that it opposes the flow of the motion of the charge, and the resistivity is the property of the substance, while the resistance is the property of conductor and or object. These are the things I have discussed, all the things in detail in the theory classes. Today I will discuss that the numerical part. Before going to start, my dear students, I want to tell you that it is a lockdown period, so I am sure that you are safe and you are staying in your home. So but what are you doing in your homes? I told you in the earlier classes that don't be relaxed in your home. Don't think that this is a vacation period and I will not study because we don't know that how long this lockdown period will extend. So don't be relaxed, because your competition is not only limited to your school or city level. Your competition is across the India. Imagine that those students who are relentlessly studying for and preparing for their exam, who are also preparing for their NTSC, Olympiad, for board examination, whatever the examination they have chosen in the life, they are preparing for that. And you are at the home and you feel that it's okay, that it's lockdown periods, I'm very relaxed, you think that you have a ample of time. So all these things really, आपकी ये जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आप रिलैक्स रहोगे तो श्योर सी बात है आपकी ये प्रगति में, आपकी ये जो कोशिश है इसमें ये बाधा पहुंचाएगी. तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं, दिस इज योर बेस, बिकॉज यही आपकी अगर मजबूत होगी तो इन विच डायरेक्शन यू वांट टू गो. इफ यू वांट टू गो इन सिविल डायरेक्शंस और यू गोइंग टू इन द डिफेंस सेक्टर, आइदर यू आर गोइंग टू मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड्स, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो तो आपका ये जो होना चाहिए काफी स्ट्रांग होना चाहिए. सो इसको आप इस लेवल तक, कंप्रिहेंसिव लेवल तक ले जाइए. एंड यू कैन सी दैट इन द टीम सुपर क्लस्टर, टीम सुपर cluster, the teachers are very consistent, and really imagine that they have the teaching experience of more than 15 and 20 years. Your classes is taken by the senior sir, Dr. R.C. Mishra is taking the bio classes, Pragya ma'am is also taking the classes, and math sir Ranjan sir is taking the classes, and also PN sir is taking the classes. So I am sure that, and also the most important thing, that your computer classes has been also started. Bipul sir is taking the classes. So all the teachers are taking your classes regularly. So you have to utilize them. बेस्ट से बेस्ट आप उनका यूटिलाइज कीजिए और अपनी ताकत आप सोचिए कि मुझे पढ़ना है और मुझे क्रैक करना है. मैं इतना तो नहीं कर सकता हूं कि ज्यादा हो जाएगा बोलूंगा, बट आई एम श्योर दैट दिस इज फैकल्टी इज रियली द बेस्ट ऑफ बेस्ट फैकल्टी, बिकॉज व्हेन वी सीट एट द चेयर वी डिसाइड दैट व्हाट द मटेरियल आई विल प्रोवाइड द स्टूडेंट्स, दैट विल बी द बेस्ट. वो कौन सा ऐसा मटेरियल दें, क्या दें, कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सब हम एक चेयर से बैठ के हमारी टीम डिसाइड करती है. इस टीम सुपर क्लस्टर की टीम जो है लगातार आपके साथ बनी हुई है, और ये टीम जो है आपको हर चीज मिलेगा. डोंट वरी, ऐसा नहीं कि आपकी थ्योरी क्लासेस ओनली चल रही है, आपकी कंप्रीहेंसिव क्लासेस के साथ साथ आपको पीडीएफ लिंक्स जो मिलेंगे, किस चीज मिलेंगे, नोट्स के मिलेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, क्विज मिलेंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, सून हम आपकी जो रैंकिंग होगी, जो क्विज कराएंगे, जो टेस्ट लेंगे, वो आपकी ऑनलाइन रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया होगा. इसलिए होगा क्योंकि सम स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग फ्रॉम सम भोपाल, सम ज्वाइनिंग फ्रॉम दिल्ली, तो ये हमें खुद भी नहीं पता है कहां से लोग ज्वाइन कर रहे हैं. तो जब सबके साथ आपका एक कंपटीशन होगा तो यू विल फाइंड दैट वेयर यू स्टैंड, आप कहां स्टैंड करते हो. तो इन सब चीजों को मैं देखते हुए हम अपने टीचर से लगातार आपके साथ लगे हुए हैं. आप अच्छे से पढ़िए और मुझे लगता है आपकी मेहनत हमें खुशी लाएगी. सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट्स, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास. ऑलरेडी देख रहे हो काफी नाइट हो रहा है. इस नाइट में फ्री होने के बाद मैं अभी क्लासेस थोड़ा सा ले रहा हूं आपका, तो क्वेश्चंस कराते हैं हम आपको. ये मैं फाइल इंपोर्ट्स कर रहा हूँ. कुछ क्वेश्चन थे जो आपके रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पे थे, मैं जहाँ पे रुका हुआ था वो क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ. ओके, ठीक है, देखते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. 10th स्टैंडर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा हूँ, तो आप देखिएगा ये क्वेश्चन पढ़िए. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है. देन यू हैव टू ये देखना है कि क्या क्या डाटा गिवन है, देन क्या पूछ रहा है, ये सारी चीज़ आपको अप्लाई करने हैं.
तो क्वेश्चन कह रहा है अ सिलेंडर ऑफ मटेरियल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ रेजिस्टेंस अलोंग द लेंथ बी 20 ohms, व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टिविटी? व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टिविटी, ये पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, वेरी गुड। अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को ये मैंने छोटा किया और यहाँ पे ले गया। ठीक, अब ये देखते हैं कि क्या क्या गिवन डाटा है। इस गिवन डाटा में मैं ये लिख रहा हूँ अ सिलेंडर ऑफ मटेरियल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो लेंथ इज गिवन दैट द 10 सेंटीमीटर, ओके, देन हैज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 centimeters, area is given that the 2 centimeter square. If it is resistance along the length be 20, resistance is given that the 20 ohm. Now what is that? What will be its resistivity? The question is asking that what will be the resistivity. क्वेश्चन में ये सारे डाटा गिवन है, लेंथ दिया हुआ, एरिया दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है। अब रेजिस्टिविटी पूछ रहा है तो हम कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाएं कि जिससे कि हमें रेजिस्टिविटी मिल जाए। सो we know that what is the formula of resistance? What is the formula of the resistance? Resistance formula is rho L by A, okay, where L is the length of the conductor and A is the area of cross section area of the conductor, okay. रो पूछ रहा है तो यहां से हम रो इस तरह कह सकते हैं, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, नो प्रॉब्लम। ठीक, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चंस में। अब हम डाटा जो सिंपली गिवन है उसे हम पुट करते हैं। लेंथ भी सेंटीमीटर में गिवन है एंड एरिया भी गिवन सेंटीमीटर में है, तो मुझे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होगी, हम डाटा को निकालते हैं। तो रो इक्वल टू लेंथ गिवन दैट आर गिवन दैट 20 ohms, put that. Now area is given that the 2 centimeter square, put it here. Now length is given that 10. So when you will solve this, that then you will find that this is equal to 10 to this is equal to 4. What is the 4? आपको यूनिट जरूर रखना होगा। रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, या इसी रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, इधर ये पूछ सकता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताइए, और ये क्या, तो 4 ये क्या हुआ, ओम सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करना हो तो सेंटीमीटर को हम जानते हैं 100 से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा हमें मीटर में। तो सिंपली ये मीटर में अगर हम करना चाहेंगे तो दिस इक्वल टू 4/100 अगर आप इसे करोगे, डिवाइड कर लोगे तो दैट विल इक्वल टू 0.04 ओम मीटर, नो इशू। ठीक है, 0 ओम मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, रियली दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशन एंड सम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या गिवन है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड, आपको पढ़ना होगा अच्छे तरीके से। इन सेकंड अटेम्प्ट दैट सी दैट व्हाट द डाटा गिवन इन द क्वेश्चन। इन थर्ड अटेम्प्ट दैट यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला। एंड फोर्थ अटेम्प्ट स्टार्ट द सॉल्विंग। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं अ वायर इज 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है, इट मीन्स दैट आपको लेंथ यहाँ से मिल गया है, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, लेंथ मिला है, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर मिल रहा है। ओके, अ वायर इज 1 मीटर लॉन्ग, 0.2 मिलीमीटर इन डायमीटर। इस बार डायमीटर दिया है, व्हाट इज डायमीटर, 2.5, 0.2 मिलीमीटर गिवन है। इन थर्ड एंड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, व्हाट इज दैट, रेजिस्टेंस वैल्यू इज गिवन दैट द 10 ओम। ओके, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट रेजिस्टिविटी पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम फार्मूला लगाना होगा। बट यहाँ पे देखोगे इस बार एरिया ना देखिए, ये डायमीटर गिवा है। इन दिस क्वेश्चन डायमीटर हैज गिवन दैट, और हमें पता है कोई भी वायर जो होता है वो सिलेंडर के फॉर्म में होता है, तो उसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सिंपली वही मैं पुट करता हूँ, इसको मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ठीक, oh my God, मैं क्वेश्चन छोटा किया हूं तो क्या मेरा, हाँ ठीक, ओके, ऐसे यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। यू थोड़ा सा भी है, इजी हैंडली यूज करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, ओ माय गॉड, थोड़ा सा ठीक, ओके। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन उठाता हूँ। क्वेश्चन में ये देखता हूँ एरिया, अच्छा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन था तो पहले नहीं लिखे हुए थे। यहाँ से हम एरिया देख लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू व्हाट इज द एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर। आर गिवन नहीं है, बट वी नो दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डायमीटर एंड रेजिस्टेंस। डायमीटर एंड रेडियस में क्या रिलेशनशिप होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड डायमीटर। रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशनशिप होता है, तो डी इक्वल टू आपका आर इक्वल टू होता है डी बाई 2।
R इक्वल टू होता है D/2। तो D आपका यहाँ पे गिवन है 0.2 mm, तो हम इसे पुट कर सकते हैं, आपका यही वैल्यू उठा के मैं पुट कर दूंगा आपके फार्मूला में, एंड आई एम श्योर दैट। बट यहाँ देखो, तब आप सॉल्व कर लोगे। यहाँ देखोगे मीटर में गिवन है और ये गिवा है मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर से अगर हम मीटर चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे हम इसको, आप ये देखोगे। वैसे मुझे मैं कहूँगा यहाँ पे आप मत चेंज करिए, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, डायरेक्ट पुट कर सकते हो वैल्यू, बट किसी को अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं यहाँ से चेंज कर दे रहा हूँ आपको। तो ये हो जाएगा, D की वैल्यू गिवन है आपकी 0.2 mm, तो इसको हम अगर हम मीटर में चेंज कर लेंगे, यहीं पे मैं कर ले रहा हूँ, ये इधर पे दिखा दे रहा हूँ। तो 0.2 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना होता है 1/1000 मीटर, मतलब 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से मुझे मिलेगा ये 2 × 10⁻⁴ मीटर। इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो यह आपका सॉल्व हो जाएगा, नो इशू। अब हम सीधा सा वैल्यू पुट करते हैं इस फार्मूले में। फार्मूला क्या होता है हमें पता है, आपका R इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फार्मूला स्टेप बाय स्टेप जाना, जिससे कि मार्किंग भी मिले। R इक्वल टू होता है ρL/A। पूछ क्या रहा है, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, तो आप रो यहाँ से लोगे, रो इक्वल टू हो जाएगा RA/L, ठीक है। अब यहाँ से हम डाटा पुट करते हैं। R इक्वल टू क्या गिवन है, 10 ओम गिवन है। एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है πr²। R की जगह पे हम D/2 रख सकते हैं, और D की वैल्यू क्या है 2 × 10⁻⁴ मीटर है, या मैं इसे यहाँ से लिख सकता हूँ 2 × 10⁻⁴/2, ठीक है। ये हुआ, और इसे अगर फर्दर करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा 10⁻⁴, आपका ये आ गया है मीटर में है, 10⁻⁴ में। अब हम इसे पुट करते हैं यहाँ पे, एरिया इक्वल टू हुआ RA/A। अब हम इसे वैल्यू पुट करते हैं πr² में, तो पाई की वैल्यू होता है 3.14, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, और R की वैल्यू क्या है 10⁻⁴, 10⁻⁴ का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली एक ही जगह पे मैंने पुट क्या दिया है πr² पुट किया है। पाई की वैल्यू होती है 3.14 एक ही, और उसके बाद R की वैल्यू गिवन है 10⁻⁴, उसका मैंने स्क्वायर यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब लेंथ यहाँ पे, लेंथ किस में गिवन है, मीटर में, नो इशू। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करोगे आप फर्दर, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁴ है तो 8 हो जाएगा। तो आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे, 3.14 × 10⁻⁸ × 10, एक ये 10 था, इसे फर्दर 10⁻⁸ से 10⁻⁸ एक 10 से काट दोगे तो ये हो जाएगा आपका 3.14 × 10⁻⁷ ओम मीटर। अभी आपको हर एक स्टेप जा रहा हूँ, डायरेक्ट कुछ नहीं कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व करा रहा हूँ। ये 10⁻⁸ था, एक 10 और था, तो इसलिए ये क्या हो गया 10⁻⁷, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ऐड होता है पावर आपको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। व्हाट इज और नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ material wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degrees Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the material that temperature? सेम क्वेश्चन वही पूछ रहा है जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में था। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये देखना है कि गिवन डाटा क्या है। इन सब क्वेश्चन में ये देखना है व्हाट इज द गिवन डाटा, आपकी गिवन डाटा क्या है, ठीक। अब गिवन डाटा में आपका क्या क्या गिवन है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सॉरी, इसकी लोकेशन यहीं पे होगा। What is the given data? Resistance of meter wire of length 1 meter. L is equal to given that 1 meter. Very good. And resistance of meter wire of length 1 meter. Okay. Now resistance is given that 26. Resistance equal to 26. If the diameter of the wire is 0.3, same issue, diameter is given that 0.3 millimeter. Okay. Next, what will be the resistivity of the metal at that temperature? पूछ क्या रहा है, रो पूछ रहा है, रो पूछ रहा है कि नहीं। जब ये रो पूछ रहा है तो सिंपल सा आप फार्मूला क्या लगाओगे, वही फार्मूला लगाओगे, R इक्वल टू होता है, ये दिख रहा है ना आपको क्लियर में, डाटा कट रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ओके, मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो स्क्रीन इतना ही रिकॉर्ड हो रही होगी, बट मुझे लगता है जितना लिखा हूँ कट रहा है, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है आपका डाटा, कट नहीं रहा है, मैंने कैमरे में देख लिया। R इक्वल टू रो L बाई ए, रो L बाई ए, ठीक है, ये R की ये वैल्यू। तो यहाँ से हम रो निकालना चाहें तो रो इक्वल टू हो जाएगा सेम R A बाई, आज तो स्मार्ट बोर्ड भी हैंग कर रहा है, R इक्वल टू
रो इक्वल टू आर ए बाई एल। ठीक है, अब सीधा सिंपली पुट करना होगा। सेम इशू दैट एरिया, और हम यहाँ फार्मूला में बट डायमीटर गिवन दैट, तो हम एरिया को डायमीटर के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। सर्किल का रेडियस, क्योंकि वायर मैंने बताया क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर होता है, तो उसका एरिया क्या होता है, ए इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर गिवन नहीं है, बट वी नो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द डायमीटर एंड रेडियस में रिलेशनशिप क्या होता है, डी इक्वल टू होता है आर बाई टू। डी इक्वल टू क्या होता है, आर बाई टू, तो आर की जगह पे हम रख सकते हैं उस वैल्यू को। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक, सॉरी, आर इक्वल टू डी बाई टू होता है। ठीक, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो अब पुट करते हैं इस वैल्यू को हम यहाँ पे, ये रुक दिए, तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू, आज हैंग हो रहा है सिस्टम, देख रहा हूँ लिख रहा हूँ तो फिर चीज़ें गायब हो जा रही हैं। तो रेजिस्टिविटी की जगह फार्मूला मैंने लगाया, आर की वैल्यू गिवन था 26 पुट कर दिया। एरिया की वैल्यू मैं लिख दिया पाई आर स्क्वायर, आर गिवन है नहीं, हमारा डी के टर्म में है, तो हम इसको लिख दिए आर इक्वल टू होता भी है डी बाई टू होता है, तो हमने इसे लिख दिया डी बाई टू का स्क्वायर। देख लो, अब लिख रहा हूँ मैं, जा यहाँ पे रहा है, आर इक्वल टू पाई, ये हो गया पाई डी स्क्वायर। नेक्स्ट आपका क्या है, लेंथ की वैल्यू कितना गिवन है आपकी, 1 मीटर है, नो इशू। अब सीधा डाटा सेम 0.3 mm में है, मिलीमीटर में गिवन है, इसको हम किस में चेंज करते हैं, मीटर में चेंज करते हैं। मीटर में जब हम इसे चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा। पुट करते हैं इसे, 26 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू डी को हम चेंज करते हैं बेटा, किस में चेंज करेंगे, हम इसको मीटर में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻³ या फिर अगर हम 3 लेते हैं इसे तो ये 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो कुछ भी हम कर सकते हैं, नो इशू। चलिए मैं इसे 3 ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको और इजी लगने लगेगा। चलिए पूरा ले लेते हैं। ठीक, इजी आपको सॉल्व करना, कोई इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक हो गया। डिवाइड बाई 1 करोगे। अब यहाँ पे देखोगे 10⁻⁻4 है, तो इसका स्क्वायर करोगे 10⁻⁻8 हो जाएगा, 2 नीचे क्या है 4 हो जाएगा। तो इसे फर्दर अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे आप इसे, तो ये हो जाएगा हमारा, और 3 क्या हो जाएगा 9 में हो जाएगा। तो इसे फर्दर इस वैल्यू को पूरा आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू में जो गिवन है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 183.69, ये आएगा 183.69। रेजिस्टेंस पूछ क्या रहा है, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, तो रेजिस्टिविटी किस में होती है, ओम ऑफ मीटर में होती है। आई थिंक दैट यू विल सॉल्व इट, नो इशू। सिंपली दैट दिस विल बी द 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड 10⁸, ऐसे 4 ऊपर जाओगे तो ये सॉल्व करोगे तो दैट विल बी योर, ये आंसर आएगा। चेक कीजिएगा, आंसर दैट ये आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता हूँ मैं आपको। Next, 4th question. The same thing that you have applied the same concept. What is that? First of all, read all the question. In question, what the data has been given. You will see that what is the question. We have a copper wire of resistance R. This wire is pulled so that its length is doubled. Temperature remains constant. Temperature को constant किया है। फिर क्या कह रहा है? Find the new resistance of the wire in the terms of its original resistance. खूब अच्छे से questions को पढ़िए। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ये पाओगे कि इस बार उस वायर को क्या किया गया है, डबल स्ट्रेच किया गया है। और कितना किया गया है, पुराने वायर से डबल हुआ है। उसकी लेंथ अब क्या हो गई, स्ट्रेच करने के बाद डबल हो चुकी है। ठीक है, अब पूछ रहा है डबल जो नई लेंथ हुई है स्ट्रेच करने के बाद वायर पे, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। और यह रेजिस्टेंस ये पूछ रहा है इन द टर्म्स ऑफ द ओल्ड वायर, जो ओल्ड वायर का रेजिस्टेंस है उसके टर्म में हमें बताना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको गिवन डाटा, सेम चीज कॉन्सेप्ट लगाना है कि व्हाट इज द गिवन डाटा। आपको गिवन डाटा क्या है, ये ले गया। ठीक है, गिवन में लिखता हूँ कि क्या क्या गिवन डाटा है ये। ठीक, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए। ये रात के इस समय आप देख सकते हो कितना बज रहा है, 23.24, मतलब 11:30 के नियर अबाउट टाइम हो रहा है। एंड आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग द वीडियो फॉर यू because this is the free time for me, and in morning other teacher will come and they will take the classes, so I am taking the classes here, don't worry, okay। ठीक है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ given data। what is the given data? given में आपको given है, we have a copper wire of resistance R, resistance given है, क्या given है, R given है। मैं यहाँ पे इस बार लिख दे रहा हूँ क्योंकि resistance को वह दे ही रहा है
हैंग कर रहा है सिस्टम भी इस बार, क्योंकि कोई चीज़ लिख रहा हूँ तो हट जा रही है। रेजिस्टेंस गिवन है आर, ये देखिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू गिवन दैट आर, दिस वायर इज पुल्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ क्या था, ओरिजिनल लेंथ मानिए, ओरिजिनल लेंथ सपोज दैट एल था, ठीक है, और न्यू लेंथ मैं मान लेता हूं एल डैश। व्हाट इज द न्यू लेंथ, एल डैश। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर इन द टर्म्स ऑफ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस। मैंने माना कि न्यू रेजिस्टेंस जो है, न्यू रेजिस्टेंस इज दैट आर डैश। अब आर डैश की वैल्यू पूछ रहा है इन द टर्म ऑफ आर, ये आर डैश की वैल्यू पूछ रहा है इन द टर्म्स ऑफ आर। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान से हो जाएगा। अब देखोगे यहाँ पे कह रहा है कि जो वायर को स्ट्रेच किया गया है, तो जो नया लेंथ है, जो न्यू लेंथ हमें मिला है, जिसको मैंने एल डैश नाम दिया है, वो क्या है, पुराने लेंथ का डबल है। इट मीन्स दैट अगर मैं इसके बीच में न्यू लेंथ और पुराने लेंथ में, ओरिजिनल लेंथ में अगर रिलेशनशिप बनाना चाहूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से कि एल डैश जो है वो किसके बराबर है, 2l के बराबर, क्योंकि इसकी न्यू लेंथ जो है वो डबल हुआ है। और जब हम किसी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं तो उसका क्या होता है, एरिया भी चेंज होगा। कोई वायर था, मान लीजिए वायर था, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले कुछ रहा होगा, बट जब आप उसे क्या करोगे, स्ट्रेच करोगे, तो श्योर सी बात है उसकी लेंथ इंक्रीज करेगी, बट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्योंकि वो थिन होता चला जाएगा, जैसे जैसे थिन स्ट्रेच करने पे थिन होगा तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या होगा, वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेंथ तो इंक्रीज करेगा बट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वॉल्यूम, एक चीज ये नोटिस कीजिएगा इस क्वेश्चन में, वॉल्यूम जो है, जो नया वायर हम स्ट्रेच करने के बाद लेंगे और जो पुराना होगा, किसी भी चीज को हम स्ट्रेच करते हैं तो एरिया तो चेंज हो गया, लेंथ भी चेंज हो गया, बट वॉल्यूम उसका क्या होगा, क्योंकि सिलेंडर के फॉर्म में होता है, आपका पता है वायर, तो होगा क्या, वॉल्यूम क्या होगा, सेम रहेगा, वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम हमारा सेम रहेगा। तो इस क्वेश्चन को हम वॉल्यूम के टर्म्स में निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब वॉल्यूम का मैं फार्मूला होता क्या है, V इक्वल टू होता है एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इनटू लेंथ, ये फार्मूला है। तो अगर हम यहाँ से एरिया निकालूं तो एरिया इक्वल टू हम ये कह सकता हूँ A इक्वल टू, मुझे लगता है दिख रहा है आपको ना, हाँ, A इक्वल टू V बाई एल, A इक्वल टू V बाई एल। एरिया इक्वल टू हम कह सकते हैं, मैं यहाँ पे फिर से लिख दूंगा, एरिया इक्वल टू V बाई एल, नो इशू, ठीक। अब हम फार्मूला लिखते हैं। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। यहां से रो की वैल्यू स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, वो मिलेगा आपको आर ए बाई एल, आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। अब एरिया को हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिख सकते हैं, V इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, एरिया इक्वल टू V बाई एल। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, आपको एरिया की जगह पे किसको पुट कर सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म्स में हम डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी इक्वल टू हो जाएगा रेजिस्टेंस इंटू एरिया इक्वल टू क्या होता है, V बाई एल। हम इसे जब पुट करते हैं V बाई एल डिवाइडेड बाई एल, तो हम फर्दर इसे जब पुट करते हो तो यहाँ से मुझे जो रो की वैल्यू मिलती है वो मिल रही है आर V बाई एल स्क्वायर, आर वी बाई एल स्क्वायर। ये मुझे किसकी वैल्यू मिल रही है, यहाँ से आप देखोगे एरिया की वैल्यू हमको मिल रही है। या फिर ये है आर वी, ये नीचे वाला एल है, या मैं इसे फर्दर ये कहना चाहूँ, रेजिस्टेंस अगर पूछूं तो रेजिस्टेंस हमारा वॉल्यूम के टर्म में मैं ये कह सकता हूँ रो एल स्क्वायर वी, रो एल स्क्वायर वी। ये रेजिस्टेंस हमारा वॉल्यूम के टर्म में आया हुआ है। तो क्या मिला मुझे, रो एल स्क्वायर बाई वी, ये वॉल्यूम के टर्म में एक नया फार्मूला मुझे रेजिस्टेंस का मिल गया। पहले रेजिस्टेंस का ये फार्मूला था, आर इक्वल टू रो एल बाई ए था, अब एक नया फार्मूला मिला आर इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई वी, ये फार्मूला हमें मिला है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक तो समझाया इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं वॉल्यूम के टर्म्स में निकालूंगा, क्योंकि न्यू रेजिस्टेंस पूछ रहा है इन द टर्म्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। मैं न्यू पेज पे जाने के बजाय, चलिए न्यू ही पेज पे चला जाता हूँ, ठीक है,
सॉरी न्यू पे जाने पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जा रहा है ना, तो मैं प्लस कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सॉरी कैसे, हाँ ठीक, इट्स ओके। तो अब यहाँ से हम निकालने की कोशिश, लेकिन मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं कैसे आपको समझाऊंगा। वापस मैं इसी पे आता हूँ। ठीक है, इरेज मैं यहाँ से करता हूँ। अब ये मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स मैं इरेज कर रहा हूँ आपको। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसको अटेम्प्ट करने के लिए हमें मिला आर डैश, आर मिला, मुझे क्या मिला, आर मिला। अब मैं रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखूंगा इन द टर्म्स ऑफ वैल्यूम, इन द टर्म्स ऑफ वैल्यूम। तो व्हाट इज द आर इक्वल टू हो जाएगा आपका रो एल स्क्वायर वी। ठीक है, न्यू रेजिस्टेंस ये आर था, न्यू रेजिस्टेंस जो मैंने कहा था आर डैश हो गया था। अब यही पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ न्यू रेजिस्टेंस, तो आर डैश का भी फार्मूला सेम हो जाएगा रो, बट एल के स्थान पे, लेंथ के स्थान पे जो नया लेंथ हुआ है, जो नया लेंथ हुआ है वो हमारा क्या हो गया है, 2L हो गया है। लेंथ जो है हमारा वो जो न्यू स्ट्रेच करने के बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि डबल हो गया है, तो हम या तो ये फार्मूला लिखें रो एल डैश बाई वी, और एल डैश की जगह वैल्यू क्या निकला था यहाँ पे, एल डैश इक्वल टू 2L था, वही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं, तो ये हो जाएगा रो 2L बाई वी, रो 2L बाई वी, एल डैश का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है वैल्यूम के टर्म में। तो इसे अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ से मिलेगा रो 4L स्क्वायर वी, रो 4L स्क्वायर वी। अब ये देखोगे आपको ये पता चल रहा होगा यहाँ से कि जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है रो एल स्क्वायर वी, तो मैं रो एल स्क्वायर वी पे आर लिख दूं और 4 हमारा ये पड़ा हुआ रहेगा। तो आर डैश इक्वल टू यहाँ से हमें मिला आर डैश इक्वल टू 4R। क्या मिला हमें, आर डैश इक्वल टू 4R, आर डैश इक्वल टू 4R। तो यही पूछ रहा था फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। न्यू रेजिस्टेंस पूछ रहा था, आप बताइए किसके टर्म में, इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से मुझे ये इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस के टर्म में मुझे न्यू रेजिस्टेंस मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो 4 टाइम्स ऑफ होगा किसके, पुराने रेजिस्टेंस का, ओरिजिनल रेजिस्टेंस से 4 टाइम्स रेजिस्टेंस होगा। और वैसे भी आपको पता होगा, मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, व्हेन वी stretch the wire, when we stretch the wire it means that the length is changing, also the area is changing। और रेजिस्टेंस किसी भी चीज का इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो श्योरली सी बात, जब मैंने लेंथ चेंज किया है तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। तो वही ये इस टर्म में आया हुआ है। ठीक है, तो 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the next question? Yes, a piece of wire of resistance 20 ohm is drawn out so that its length is increased to twice its original length. Calculate the resistance of the wire in the new situation. Same है, given क्या है देखिए, a piece of wire of resistance 20 ohm is drawn out so that its length increased to twice। 20 ohm था, इसकी रेजिस्टेंस क्या हुआ, डबल हुआ है, its original length। Calculate the resistance of the wire in the new situation। न्यू सिचुएशन में हमको करना है, सीधी सी बात है, सेम अप्लाइड करना है मैथड कि ये मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना। ठीक, गिवन डाटा में निकालना है। सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट क्या करना है, व्हाट इज द गिवन। गिवन में क्या क्या गिवन है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर गिवन है, कितना गिवन है, 20 ओम गिवन है, इज डाउन आउट सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीज टू ट्वाइस, आर गिवन है 20। पहले मान लीजिए जो पहला लेंथ था, लेंथ कितना गिवन था, लेंथ सपोज दैट एल था, ओरिजिनल लेंथ, मैंने यहाँ पे ओरिजिनल लिखा हुआ है, ओरिजिनल लेंथ एल था, सो दिस लेंथ इंक्रीज। न्यू लेंथ कितना हुआ स्ट्रेच के बाद, न्यू लेंथ एल डैश है, एल डैश कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, तो किसके टर्म में, ओरिजिनल, तो एल डैश इक्वल टू 2L increase to twice of its original। calculate the resistance of wire in the new situation। resistance of पूछ रहा है, न्यू रेजिस्टेंस सपोज दैट आर डैश है, यही पूछ रहा है, तो सेम फार्मूला यही लगाना है आपको। अब सेम इस फार्मूले को लगाने के लिए सेम वही, हमें पता है वैल्यूम क्या होता है, सेम होता है, तो वैल्यूम के टर्म में हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, फिर इसको डिफाइन करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और छोटा कर ले रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा, ये ठीक है, यहाँ पे ले गया मैं इस क्वेश्चन, तो आप देख चुके होंगे, कोई बात भी नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम
इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक, अब R इक्वल टू फार्मूला लगाते हैं। R इक्वल टू होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। R इक्वल टू होता है रो L बाई ए होता है। ठीक है, यहाँ से रो इक्वल टू, अब रो को मैंने अभी फार्मूला बताया था आपको, वॉल्यूम के टर्म में निकालना है। वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इनटू लेंथ, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई एल। तो यहाँ से अगर हम R इक्वल टू निकालना रखें तो सिंपली रो L और एरिया की जगह हम रख देंगे V बाई एल, तो ये ऊपर चला जाएगा तो L स्क्वायर रो L स्क्वायर बाई V हो जाएगा। ये हमारा वॉल्यूम के टर्म में रेजिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा। अब ये हमारा न्यू रेजिस्टेंस का फार्मूला था। अब ये कह रहा है हमारा कि क्या पूछ रहा है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 मीटर डाउन आउट, सो इट्स लेंथ इज इंक्रीज ट्वाइस, सो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इन द न्यू सिचुएशन। वेरी गुड, ये हमारा क्या गिवन है, ये आपका गिवन है पुराना रेजिस्टेंस। अब न्यू रेजिस्टेंस की बात कर रहा है और ये इक्वल टू गिवन भी है बेटा 20 ओम गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम, आर की वैल्यू क्या है 20 ओम। तो न्यू रेजिस्टेंस आर डैश, इसका फार्मूला हम पुट करते हैं रो एल डैश का स्क्वायर V, वॉल्यूम के टर्म में कर रहा हूँ जिससे कि सेम रहे, फार्मूला चेंज ना हो हमारा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं एल डैश की वैल्यू क्या है 2L रखते हैं, तो हमें ये मिलेगा यहाँ से रो 2L का स्क्वायर बाई V। तो यहाँ से मुझे मिला ये, फिर यहाँ पे फर्दर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ से, तो ये मिला हमें आर डैश, यहाँ से आर डैश इक्वल टू रो L स्क्वायर V, सेम कितना गिवन है 20 हम पुट कर सकते हैं और 2 2 जा 4। अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो ये मुझे मिला रो L स्क्वायर V और इंटू 4 मिला। तो रो L स्क्वायर V की वैल्यू कितना गिवन है 20, ये गिवन है। तो R डैश इक्वल टू मैं यहाँ पे ये पुट कर सकता हूँ 20 और ये इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 80 ओम। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हुआ हमारा 80 ओम, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि रो L स्क्वायर V की वैल्यू आपका गिवन है। इस तरह भी लिख सकते हो, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, फिर इसे इक्वेशन 2 मान के फिर दिखाते पुट इन द वैल्यू, वो आप किसी भी तरह अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अ वायर इज रेजिस्टेड सो दैट इट्स लेंथ बिकम 6 by 5 times of its original length if its original resistance is 25 ohm, find the new resistance and resistivity। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद व्हाट इज द गिवन डाटा वो अप्लाई कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक, यहाँ पे हम ले जाते हैं व्हाट इज द गिवन, टेंशन रहती है। व्हाट इज द गिवन, a wire is resisted so that its length becomes 6 by 5 times of its original length। a wire is resisted, ठीक है, so its length become था, तो पहले ओरिजिनल लेंथ हमारा कितना था, ओरिजिनल लेंथ इस तरह हम लिख सकते हैं, सपोज ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू L, आप किसी भी तरह ओरिजिनल लेंथ L था मैंने माना, सपोज इट्स लेंथ बिकम 6 by टर्न्स, न्यू लेंथ कितना हुआ, न्यू लेंथ हो जाएगा L डैश माना ये, दिस इक्वल टू 6 by 5 टाइम्स ऑफ L, ये हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, इफ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज 25 M, ओरिजिनल रेजिस्टेंस सपोज दैट R था, सपोज ये लिख लीजिएगा, सपोज ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज R, तो दैट इज इक्वल टू गिवन दैट 25 ओम। पूछ कह रहा है फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, आपका न्यू रेजिस्टेंस पूछ रहा है, मानिए न्यू रेजिस्टेंस इक्वल टू R डैश मान लीजिए आप, और रेजिस्टिविटी भी पूछ रहा है, रो भी पूछ रहा है, दोनों पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम सॉल्व करते हैं यहाँ से। ठीक, चलिए इसके बीच में सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जगह है ना, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसको। अब हमें न्यू रेजिस्टेंस निकालना है, सेम फार्मूला लगाना है आपको और अप्लाई कर देना है इन टर्म्स ऑफ आपको वॉल्यूम के टर्म में लगाना है। तो R डैश इक्वल टू होगा, फार्मूला मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, R डैश इक्वल टू हो जाएगा रो L डैश का स्क्वायर एंड V, रो L डैश स्क्वायर V। ठीक है, अब यहाँ पे L डैश इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं हम, तो R इक्वल टू हो जाएगा रो L डैश की वैल्यू कितना गिवन है 6 by 5 L, 6 by 5, ये ऐसे ले रहा हूँ, जगह नहीं है थोड़ा सा, एंड ये स्क्वायर कर दिया और नीचे आपका V है, नीचे आपका V है। फिर इसे हम फर्दर करते हैं, तो यहाँ से मुझे मिलेगा ये R डैश इक्वल टू हो जाएगा बेटा 6 का स्क्वायर करोगे ये, दैट विल इक्वल टू 36 हैंग हो रहा है सिस्टम, 36 L स्क्वायर, इसीलिए वैसे भी राइटिंग नहीं अच्छी है और इतना प्रॉब्लम ये कर रहा है।
25, R dash equal to 36 L square by 25. Find its new resistance and resistivity. अब ये मुझे मिला 36 L स्क्वायर एंड 25 V भी है, वैल्यू भी है। अब ये मुझे R डैश का फार्मूला, मैं इसे डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिया हूँ क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन सेम जैसे आ रहे हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस हुए हैं। वैसे अगर मैं यहाँ से R का फार्मूला लिख दूँ तो ये मैं लिख सकता हूँ रो L स्क्वायर V, ये फार्मूला होता है R का, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ। तो R डैश हमारा क्या हो जाएगा, आप देखोगे यहाँ से मुझे मिला, यहाँ पे रो नहीं लिखा था, यहाँ से आपको मिला रो L स्क्वायर V की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं क्या, R पुट कर सकते हैं। तो R डैश इक्वल टू हो जाएगा 36 बाई 25 R, 36 बाई 25 R, 36 बाई 25 R, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। तो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा 36 बाई 25 R। पूछ रहा है रेजिस्टिविटी के बारे में, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, किसी भी मटेरियल का सेम रहता है, चाहे जितना भी आप लेंथ स्ट्रेच कर लो, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल सेम होगा। वो कॉपर वायर चाहे 10 सेंटीमीटर का, चाहे 20 सेंटीमीटर का या 30 सेंटीमीटर का, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती, सेम होती, क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, ये मैं बता चुका हूँ थ्योरी में। तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए, मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गए हैं क्या, 7 8 9। एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ और फिर उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम ये लग रहा है आपका। ठीक है, ये देखते हैं। अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज सो दैट इट्स लेंथ इज डबल एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, हाउ विल इट्स रेजिस्टेंस चेंज एंड रेजिस्टिविटी चेंज। सबसे पहले आप क्वेश्चन को इसको पढ़िए और मुझे लगता है आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बड़ी इजीली। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चंस में व्हाट इज द गिवन डाटा वो पढ़ना होगा आपको। काफ़ी टाइम हो गया, सो मैं क्लोज भी करूंगा, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। 2 क्वेश्चन और थे बट आई विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। माई एनर्जी इज ऑल्सो रिड्यूस, देख रहे होगे, इट्स लाइक दैट। बहुत शांत से बोल रहा हूँ, वैसे भी इसलिए स्लो बोल रहा हूँ। दिस इज एन अपार्टमेंट एंड माइट बी दैट माई वॉइस विल बी द, अगर मैं तेज़ बोलूँगा तो समवन विल सुनेंगे और उनको डिस्टर्ब होगा सोने में, तो दैट्स वाई बहुत ही स्लो बोल रहा हूँ, फिर भी ऑडिबल होगा। गिवन डाटा, वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेट। अ वायर ऑफ क्या दिया है, वायर ऑफ लेंथ L, लेंथ गिवन है, लेंथ L है, रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, कितना गिवन है, R गिवन है, लेंथ L, रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेट, सो दैट इस लेंथ इज डबल एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज द हाफ। अब ये क्या था, ओरिजिनल लेंथ, मैं यहाँ पे O लिख दिया हूँ, इसका मतलब ओरिजिनल समझ लीजिए, ORG दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ से बता रहा हूँ, ओरिजिनल लेंथ इज, सपोज दैट ओरिजिनल लेंथ L, सपोज दैट ओरिजिनल रेजिस्टेंस R। अब कह रहा है ये न्यू लेंथ स्ट्रेच करने के बाद न्यू लेंथ कितना हो जा रहा है, मानता हूँ ये L डैश है, बट हो क्या रहा है ये, इससे इस लेंथ इज डबल, तो ये L डैश इन टर्म्स ऑफ मैं ओरिजिनल लेंथ बताता हूँ तो क्या हो गया, 2L हो गया। एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, पहले एरिया दैट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अरे गलत, एक चीज़ तो यार, कोई दिक्कत नहीं है, आपका यहाँ पे लिखता हूँ ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया सपोज कितना था, A था, ठीक है, ए डैश नहीं सॉरी A था, ठीक। अब न्यू एरिया कितना हो गया, हाफ हो गया, न्यू एरिया सपोज दैट इज इक्वल टू A डैश, न्यू एरिया इज A डैश। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ओरिजिनल एरिया एंड द न्यू एरिया, न्यू एरिया विल बी द, क्या कह रहा है, न्यू एरिया हाफ हो जा रहा है, कह रहा है ना, डबल एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ। तो A डैश हम अगर A टर्म में डिफाइन करना चाहें, रिलेशन निकालना चाहें, तो जो न्यू एरिया है A डैश वो क्या कह रहा है, हाफ हो जा रहा है, किसका हाफ हो रहा है, ओरिजिनल का। तो मैं ये लिख सकता हूँ A डैश इक्वल टू A/2, A डैश इक्वल टू A/2, काफी सिस्टम हीट हो गया, A डैश इक्वल टू A/2, ठीक, यहाँ तक हो गया। हाउ विल बी इट्स रेजिस्टेंस चेंजेस, क्या पूछ रहा है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसे मैं थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूँ और काफ़ी छोटा कर देता हूँ क्योंकि इसका काम हो चुका है। हाउ विल रेजिस्टेंस चेंजेस, आराम से एंजॉय करते हुए पढ़िए, डोंट वरी फॉर दैट। इफ आई एम टेकिंग द क्लासेस एट द नाइट एंड आई एम श्योर दैट यू विल एंजॉय, आप भी मेहनत करोगे उसी तरह। इफ तो ये
अब इसको हम किस मीटर में, व्हाट इज दैट पूछ रहा है, रेजिस्टेंस चेंजेस, हाउ विल इट्स रेजिस्टेंस चेंजेस, रेजिस्टेंस चेंज की बात कर रहा है। तो पहले हम ओरिजिनल रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या था, सपोज दैट ओरिजिनल रेजिस्टेंस वाज द आर, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ जगह कम है, तो आर इक्वल टू फार्मूला हम निकालते हैं, इसका हो जाएगा रो एल बाई ए, ठीक है। ये हमारा क्या था, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। न्यू रेजिस्टेंस सपोज दैट है, न्यू रेजिस्टेंस आर डैश हो गया, ठीक है, तो रो रो ही रहेगा, ठीक है। यल हम किसके टर्म में रख दें, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ एल डैश ए डैश। अब आर डैश इक्वल टू, यहाँ से मुझे मिलेगा रो एल डैश, यल डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यल क्या है, 2l है, बट ए डैश इक्वल टू क्या है, a बाई 2 है, a बाई 2। इसे फर्दर यहाँ से ले जाओगे तो ये मिलेगा आपको, थर्ड स्टेप यहाँ से मिलेगा आर डैश इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 4 रो एल बाई ए, 4 रो एल बाई ए। तो यहाँ से ये मिला आर डैश, आर डैश इक्वल टू हुआ रो एल बाई ए की वैल्यू क्या थी आर, वो मैं पुट कर दिया रो एल बाई ए की, तो 4r, तो आर डैश हमें जो मिला वो क्या मिला, 4r। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो न्यू रेजिस्टेंस कितने टाइम चेंज होगा, 4 टाइम्स चेंज होगा। रेजिस्टिविटी चेंजेस, रेजिस्टिविटी जो होगी उसकी क्या करेगी, नहीं चेंज होगी, रेजिस्टिविटी आपकी नहीं चेंज होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल क्या होता है, सेम होता है किसी थिंग के। आई थिंक दैट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक अगला क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और थे, बट अब टाइम काफ़ी हो गया है और उसमें अगले क्वेश्चन में बात करूँगा, ठीक है, ठीक है। दैट्स ऑल, thanks for watching me. I will all this question I will discuss in by the next session, because video is going too much longer, ठीक, okay, thanks, good night to all of you.